اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹرانسجینڈر بل جو پاس ہوا ہے، اس حوالے سے جو تحفظات ہیں، جو خدشات ہیں، اس کے حوالے سے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور کہا جا رہا بھی ہے، لکھا جا رہا بھی ہے۔ میری اپنی 2-3 ویڈیوز اس کے اوپر پہلے بھی آ چکی ہیں۔ ناظرین اکرام، پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کو ٹرانسجینڈر ایکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قانون 2018 میں پاس ہوا اور اس قانون کو پاس کرنے میں صورتحال یہ تھی کہ دونوں حکومت اور اپوزیشن دونوں میں اتفاق رائے تھا۔ ایک سینیٹر صاحب مشتاق احمد صاحب نے اس کی بھرپور مخالفت کی، لیکن کسی نے بھی ان کی اس مخالفت پر توجہ نہیں دی۔ جب یہ قانون عدالت میں چیلنج ہوا تو پھر بہت سے حقائق سامنے آ گئے۔ بظاہر یہ بل جو ہے خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس سارے بل میں خواجہ سراؤں کو جتنے بھی حقوق دیے گئے ان پر سب کا اتفاق ہے، بلکہ یہ حقوق جب پاکستان بنا تھا اسی وقت انہیں دے دینے چاہیے تھے۔ عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دیندار طبقہ جو ہے، ایسے حلقے جو دین سے رکھتے ہیں، جن کا زیادہ اس طرف ہے، وہ اور خواجہ سراؤں کی خاصی تعداد بھی اس بل کے حوالے سے تشویش کا شکار کیوں ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیندار طبقہ جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ روشن خیال این جی اوز زدہ لوگ جو ہیں یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اس غلط فہمی کو ذرا دور کر لیا جائے۔ ناظرین اکرام، عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر اتنا شور مچایا جا رہا ہے۔ اس بل کی مخالفت کرنے والوں کا موقف یہ ہے کہ پاکستان میں شریعت سے متصادم کوئی بھی قانون نہیں بن سکتا، جبکہ اس قانون کے چیپٹر نمبر 2 کی شق نمبر 3 کی ذیلی شق نمبر 2 اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے، لہٰذا اس بل میں ضروری ترامیم کی جائیں۔ جبکہ اس کے حق میں جو بولنے والا لبرل دانشور طبقہ ہے کہ اس میں کوئی شق خلاف شریعت ہے ہی نہیں، لہٰذا اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس حالت میں یہ بل پاس ہوا اسی طرح نافذ العمل رہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکثر لوگوں نے اس بل کو خود نہیں پڑھا، بلکہ سنی سنائی باتوں پہ اپنی تربیت اور افکار کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر رائے زنی کر رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں ایک عام آدمی پاکستانی جو ہے، ایک عام انسان جو ہے، وہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اصل صورتحال کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس بل کے اصل متن کی روشنی میں صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے قانون میں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ کوئی بھی 18 سال سے زائد عمر کا مرد یا عورت نادرہ آفس جا کر اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر ظاہر کر کے مرد سے عورت یا عورت سے مرد میں جنس تبدیلی کی درخواست دے تو نادرہ دستاویزات میں اس کی جنس تبدیلی کا پابند ہوگا۔ اب بتائیں ذرا کیا ہے جناب کہ کوئی بھی مرد یا عورت جا کر کہ جی مرد کے جی میں عورت ہوں، عورت کے جی میں مرد ہوں، مجھے میری جنس یہ لکھ دی جائے۔ اگر پیدائشی مرد ہے، وہ کسی مرد سے بھی شادی کرنا چاہتا ہے، وہ آسانی سے اپنے آپ کو عورت لکھوا کر شادی رجسٹریشن کروا سکتا ہے۔ اسی طرح صنف مخالف بھی یہی کچھ کر سکتی ہے۔ اس سے جائیداد کے معاملات، عورتوں مردوں کے میل جول کے معاملات میں بہت سی قباحتیں جنم لیں گی۔ ناظرین اکرام، اس میں میڈیکل رپورٹ کو لازم قرار دیا جائے تو مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ موجودہ قانون میں جو ہے وہ جو صورتحال سامنے آئی ہے کہ مرد عورت اور عورت مرد نادرہ ان کی خواہش ماننے کا پابند ہے، کہ نادرہ کا جو محکمہ ہے، جو بھی مرد کہ جی میں عورت ہوں، عورت کہ جی میں مرد ہوں، وہ اس کی خواہش ماننے کا پابند ہے۔
जबकि तिबी लिहाज से खा इसकी जिन्स तब्दील ना भी हुई हो। बज़ाहिर ख्वाजा सराओं के हकूक़ की आड़ में ये गेज़ का कानूनी रास्ता हमवार करने की एक इंतहाई बेहुदा कोशिश की गई है। इससे वो बआसानी फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन कराम, बरतानिया में 2004 में जिनसी तयन के एक्ट में तिबी मुआयने और तिबी सर्टिफिकेट को लाजमी रखा गया, जबकि पाकिस्तान जेंडर एक्ट 2018 के लिहाज से किसी मेडिकल बोर्ड की राय के बगैर मर्द से औरत या औरत से मर्द बनने और तब्दीली जिन्स का ऑपरेशन कराने की खुली छुट्टी है। ऐसा लगता है कि हम मगरब से भी 2 कदम आगे लिबरल बनने की दौड़ में हैं। ये हम जिन्सों की आलमी तंजीम की जानब से उस कानून की हमायत में लॉबिंग इस बात का सबूत है कि ताकतवर हल्के इन NGO से ना सिर्फ मुतासर हैं बल्कि डॉलर्स की चकाचौंध रोशनी जो है उससे इनकी आंखें जो है ना वो चुंधिया गई हैं। नाज़रीन कराम, जो असल इतराज़ मसवदा के चैप्टर 2 की सेक्शन 3 की सब सेक्शन 3 और 4 पर है, जहां 18 साल की उम्र के बाद ख्वाजा सराओं को नाम की तब्दीली और अपनी मर्जी से जिन्स की तब्दीली लिखवाने की इजाज़त दी गई है। नाज़रीन कराम, देखें क्या है जनाब कि तब्दीली की इजाज़त दी गई है। सेक्शन चैप्टर 2 का सेक्शन A person recognized as transgender under subsection 1 shall have a right to get himself or herself registered as per self-perceived gender identity with all government departments, including but not limited to NADRA. Every transgender person being the citizen of Pakistan who has attained the age of 18 years shall have the right to get himself or herself registered according to self-perceived gender identity with NADRA. यानी कि वो अपनी मर्जी से अपनी जिन्स लिखवा सकता है। ये जनाब यहाँ पर मैंने आपको बिल की वो इबारत भी बताई है। इस बिल के हवाले से बड़ी चालाकी के साथ ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ये कवानीन तो ख्वाजा सराओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इससे तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों के हकूक़ पर डाका डाला गया और ऐसे लोगों को इनकी कम्युनिटी में शामिल करने की कोशिश हो रही है जो दरअसल इनका हिस्सा नहीं है। इस बिल की शिक नंबर 3 और इसकी झैली शिक नंबर 2 के ज़रिए इंतहाई ख़तरनाक कानून साजी की गई है। इसमें कहा गया कि किसी भी ट्रांसजेंडर शख्स की जिन्स का तयन इसकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। इसका मतलब यह है कि कोई मर्द उठे और ऐलान कर दे कि मुझ में तो औरत वाली हसियात पैदा हो चुकी हैं, ऐसे हिस्से पैदा हो चुकी हैं, लिहाजा आज से मुझे औरत समझा जाए, तो ना सिर्फ इसके दावे को कबूल किया जाएगा बल्कि इसके मुताबिक इसको दस्तावेज़ात यानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वगैरह भी जारी किए जाएंगे। इसी तरह अगर कोई खातून ये दावा करे कि मुझे मर्द की कैफियत बदन में महसूस हो रही हैं, तो इसको इसके दावे के मुताबिक मर्द समझा जाएगा और ऐसे मर्दों की सिन्फ के मुताबिक शनाख्ती कार्ड दस्तावेज़ात जारी कर दी जाएंगे। इस अमल में ना तो मेडिकल बोर्ड की पाबंदी आयद की गई है और ना इसके नफ्सियाती मुआयने की शर्त रखी गई है। इंसानी जिस्म के हवाले से कुरान करीम का बड़ा वाज़ेह हुक्म है कि किसी इंसान को यह हक़ हासिल नहीं कि वह अपने जिस्म में ऐसी तब्दीलियाँ पैदा करे जिससे इसकी जो साख्त जो है वो तब्दील हो जाए, क्योंकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक इंसान अपने जिस्म का ख़ुद मालिक नहीं बल्कि इसके पास अल्लाह ताला की अता की हुई अमानत है और वो इस अमानत में अल्लाह की तरफ से तय करदा असूलों के मुताबिक ही उसका तसर्रुफ़ कर सकता है। ताहम मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला तबका जो है उसकी खुशनुदी के लिए मज़कूरा कानून के तहत एक संगीन फितने का रास्ता खोल दिया गया है जिसके सामने कोई रुकावट नहीं रखी गई। आप सब हजरात इस कानून को पढ़ लें। इसमें 18 साल के बाद किसी भी मर्द औरत को आज खुद जिन्स तब्दीली का अख्तियार दे दिया गया, जबकि पहले वो नॉर्मल मर्द हो या औरत के तौर पर नादरा में रजिस्टर्ड था। ट्रांसजेंडर बनेगा ही तब जब जिन्स तब्दील का वो खुद ही अपनी हिस्सियात के मुताबिक फ़ैसला करेगा, लेकिन पहले ही ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ कानून में लिख कर आँखों में धूल झोंकी गई। इस कानून के नतीजे में हज़ार लोगों ने अभी तक जिन्स तब्दील की है, जबकि वो ख्वाजा सरार नहीं हैं। रही बात ख्वाजा सराओं की, तो वो भी इस कानून के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हैं कि हज़ारा मर्दों औरतों ने अपने आप को ख्वाजा सरार ज़ाहिर करके हमारे हकूक़ पर डाका डाला है। अगर फौरी तौर पर इस कानून में तरमीम ना की गई तो एक बहुत बड़ी तबाही का ये पेश खैमा साबित हो सकता है। देखें,
जो सब सेक्शन 1 है कि अ ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव अ राइट टू बी रिकॉग्नाइज एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी एज सच इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी कि वो कह रहे हैं कि एक बंदा कहे जी मेरे अंदर तो ऐसी तब्दीलियां पैदा हो गई हैं कि मैं तो जो है ना वो मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ। औरत के जी मैं तो मर्द हूँ। तो जनाबे वाला मसला ये है कि लफ्ज़ ट्रांसजेंडर का इस्तेमाल किया गया और उसकी आड़ में ये किया जा रहा है। और ये जो पिछले 4 साल में जो तब्दीलियाँ आई हैं जिन लोगों ने किया है, इसमें हज़ारा लोगों ने मर्द से औरत और औरत से मर्द के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं। इससे वरासत के मामलात, इसमें दूसरे मामला जो है उनके अंदर भी इंतहाई जो है मुसीबत जो है वो पड़ेगी। माशरे के अंदर जो है ना अजीबो गरीब किस्म के मामला पड़ेंगे। आप मेडिकल बोर्ड बना दें, मेडिकल बोर्ड चेक किया करे कि ये मर्द है तो उसको मर्द का बने, औरत है तो औरत का बने। ख्वाजा असराओं के हकूक़ के हम अलंबरदार हैं और इसके लिए हम हर तरह का जो है ना वो अपनी तगोताज जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन इकराम, ये आपकी खिदमत में मेरी तकरीबन तीसरी या चौथी वीडियो है जो ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से की है। इसमें एक बात खुलकर सामने आ गई है कि जनाब मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, जिसने अपनी जिन्स का तयन करना है वो मेडिकल बोर्ड करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2022 LHC 6422 जजमेंट है जी, डिवीजनल बेंच लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला। इसमें जो इशू उठाया गया है वो ये है कि जनाब ये चीज़ देखी जा रही है कि वेदर अ पार्टी हु फेल्स टू प्लीड अ फैक्ट इन प्लीडिंग कैन बी अलाउड टू प्रूव द सेम थ्रू एविडेंस। कि कोई अगर फ्रीक प्लीडिंग में यानी कि अर्जी दावा या जवाब दावा में वो अपनी जो फैक्ट्स हैं वो बयान नहीं कर सका, क्या वो बाद में एविडेंस में शहादतों में उसको साबित कर सकता है अगर उसने प्लीडिंग में ये ना जो है वो क्लेम किया गया हो या फैक्ट्स बयान ना किए हों? इसका जवाब जनाब अब हम लेते हैं। इसका जवाब ये है कि द पार्टी filing suit has to specifically plead the circumstances under which exemption and in turn fresh point of limitation has been claimed. In case of party failed to specifically mention those facts in the plaint, there is no need for the court to have framed the issue on the point of limitation and to require a party to adduce evidence to establish the same, owing to yet another established principle of law that where a party failed to plead a fact in pleading, it cannot be allowed to prove the same through evidence. तो जनाब अगर कोई पार्टी फेल हो जाती है प्लीडिंग में अपनी बात बताने में, दावे में या अर्जी जवाब दावा में, तो उसको फिर ये एविडेंस में साबित करने की इजाज़त नहीं होती। इसलिए अगर हम जो दावा कर रहे हैं उसका दावे का ज़िक्र हमारे उसमें ज़रूर होना चाहिए, हमारे दावे में, प्लेंट में, या अगर हम उसका रिबटल कर रहे हैं, रिटन स्टेटमेंट दे रहे हैं, जवाब दावा, तो उसमें भी वो लिखा होना चाहिए। बाद एविडेंस में हम वो कह दें पहले हमने ना कहा तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।